Hello everyone, I said good evening. How are you people? That's great. So, how was your weekend? Princess ma'am. Jyotika, why princess ma'am? I am fine. Perfect. Everything is great. It's just because of the blessings of the God. Thank you so much, Jyotika, for giving such a great honor and respect. Blessed. So, as you know that you have read your pattern of the exam. Pattern पढ़ा एग्जाम का जो दिसंबर में टेस्ट है. आई हैव गिवन यू द सिलेबस. सर ने आपसे टेस्ट लिया, वही पैटर्न है. उसमें क्या था? एमसीक्यूज क्वेश्चन थे. तो वो एमसीक्यूज क्वेश्चन क्या थे? या तो किसी सेंटेंस को सही करो, या वोकेबलरी, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, और कौन से क्वेश्चन थे? सो मेरे अकॉर्डिंग जो अभी दिसंबर के लिए अगर हमें प्रिपेयर करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी वोकेबलरी जो है वो आपकी जो वोकेबलरी है वो काफी स्ट्रांग हो जाए. सो अगेन टुडे आई एम हैविंग द क्लास ऑफ द वोकेबलरी ओनली. सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स. So today I'm coming with the new words. That is one word. हम कहते हैं ना one word for a particular person. Yes, it is getting recorded. On that day the memory was, you can say, fill, and there was no memory space to record more lectures. So that's why I haven't recorded the lecture. Yes. Okay. So please come to the point now. Rather, it's any sort of, like, rather you are belonging to 1 year, 3 year CDS. Vocabulary is really very important in English, because when you know the meaning, you know the terms, and you are using that terms in your content, then and only then you will be able to score. So let's start. It's for everyone. Please look at it. For the first word is one who is not sure about the God's existence. मतलब वन वर्ड हमने बताना है जिसको मतलब ये है, पता ही नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं. उस बंदे को हम क्या बोलते हैं, या उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? उस पर्सन को हम बोलते हैं एग्नोस्टिक. क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस करो मेरे पीछे. नो डाउट आई एम नॉट एबल टू हेयर यू, but yes, you should be able to pronounce in the right way, and it's agnostic. Yes, atheist also. Oh, so that doesn't believe in God. But यहाँ पे है the person who is not sure about the God's existence. जिसको यही शक है कि भगवान है या नहीं है. जिसको ये लगता है कि भगवान नहीं है, उसके लिए वर्ड है agnostic. Okay. A lover of mankind. सिनोनिम उसका होता है philanthropist, और इट्स altruist. altruist altruist जो बंदा इंसानियत को प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं? altruist. ओके. नेक्स्ट, एक बंदा वो वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर.
खुशी के लिए काम करता है, नॉट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन को तो हम प्रोफेशनल्स कह देते हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन कह देते हैं, पर ये जो होते हैं फ्रेशर्स, या जो खुशी के लिए काम कर रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? अमेचर। प्रोनाउंस द वर्ड अमेचर। Amateurs have the full enthusiasm towards the work, but they need some experience to become professionals. Getting? It's altruist. Altruist. Amateur, अगर आपको लगे कि आपने कहीं लिखना है like Indian, you can say Indian government is following or is moving the government in an amateur way, whereas developed countries are following them in a professional way. So that's why they are able to generate something out of it. Are you in favor of it or not? What I'm saying? Okay. One who can use either hand with ease. जो दोनों हाथों को यूज कर सकता है। जैसे अगर मैंने लिखना है तो आई जस्ट राइट विद द यू कैन से माय राइट हैंड, है ना। बट एक इंसान ऐसा होता है वो राइट से भी लिख सकता है, लेफ्ट से भी लिख सकता है। एक तो है वो, मतलब मैं राइट से लिखती हूँ, राइट हैंडेड हूँ, है ना। लाइक कोई बंदा है वो लेफ्ट से लिखता है, वो लेफ्ट हैंडेड है, वो तो बात अलग होगी, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड। बट द पर्सन हु कैन यूज ईदर ऑफ हिज टू हैंड्स, जो कोई भी हैंड को यूज कर सकता है, उस बंदे को हम क्या कहते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस। The person who can use either of his hand is known as ambidextrous. Okay. One who is out to destroy all the government peace and order. One who is out to destroy all the government's peace and order. जो मतलब क्या है? गवर्नमेंट की शांति, जो भी उसने रूल्स एंड बनाए हैं, उन सबको जो है डिस्ट्रॉय करने के ऊपर लगा हुआ। वो तो मैंने लिखा ही है। That person is known as anarchist. Pronounce करो anarchist. There are many people in the Indian society who are anarchist. Yes, like a sort of criminals only. A person who has changed his faith, जिसने अपने विश्वास को बदल दिया है, that person is apostate. What that person is? Apostate. A person who changed his faith, जिसने अपना मतलब विश्वास जो है उसको बदल दिया है, that person is known as apostate. A person appointed by two parties to solve a dispute. हम क्या कहते हैं? विचौला खड़ा कर लो, है ना। वही कहते हैं ना इंटरमीडिएटर, जिसको हम कह देते थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज में वही से इंटरमीडिएटर। But in a professional or in a formal English, it is seen as arbitrator. What it is called as? Arbitrator. Please pronounce in, you can say back to me. This is arbitrator. Okay. One who leads an austere life. Ascetic. Ascetic.
ऑस्टर क्या क्या मतलब है? ऑस्टर, प्लीज सर्च. इट्स अमेच्योर. एस्केटिक. Now please check the meaning of the word austere. Ascetic, one who leads a simple life, is known as ascetic. He is an ascetic man. He is an ascetic woman. That means she lived a very simple life. Atheist, a person who does not believe in God, who does not, who is, you can say, not sure about the God existence, is agnostic. A person who does not believe in God is atheist. बैंक करप्ट, जो क्या है, बैंक से लिया उधार जो है वो पे नहीं कर पाया. हु इज अनेबल टू पे हिज डेबिट्स. ठीक है. बाय गॉड, one who is filled with excessive enthusiasm in religious matters. Radha, what happened? एथिस्ट का क्या मतलब होता है? जिसको भगवान की एग्जिस्टेंस में बिलीव होता है. And okay, you said yet you believe in God and you are atheist. Is this Radha? Okay. फिर लिखते I am an atheist. I am an atheist. Bigot means one who is filled with excessive enthusiasm in religious matter. जिसको बहुत ज्यादा मतलब जो अपनी शक्ति अपनी पार उसमें लगाता है, उस इंसान को हम कहते हैं a one who is filled with excessive enthusiasm in the religious matter. Bohemian, an unconventional style of living. Unconventional style of living means एक होता है normal style of living. Bohemian मतलब this is not a common style of living. It is an unconventional. Enthusiasm होता है कि अंदर से एक शक्ति, like with full power, with full energy. That is enthusiasm. Please go through these words once and then we will shift to the next slide with the new vocabulary words. बोहमेन, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग. अनकन्वेंशनल मतलब जहां पे कोई भी, कन्वेंशनल क्या होता है? पास्ट, जैसे पास्ट में लोग रहते थे रिजिड सी लाइफ. अनकन्वेंशनल का मतलब जहां पे पास्ट लाइफ नहीं है, नॉर्मल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी टेंशन और वरीज नहीं है. Okay, please read these sentences once and then we will be optimistic. The person who believes in God is an optimistic man. Theist, search it, rather it is said as theist or not.
After doing this, please let me know. See it once, and if you have any issues, any doubt, please ask me. By God, one who is filled with excessive enthusiasm in religious matter. नहीं, ऐसे नहीं है जिसको बहुत ज्यादा बिलीफ है. ही इज नॉट एन अंधविश्वासी. नैरो माइंडेड नहीं होते वो. जिसको भगवान में विश्वास होता है, उसको लगता है जो हो रहा है वो भगवान के कारण हो रहा है. दैट पर्सन इज नोन एज बाय गॉड. भी रब जिदा चलाई जाऊंगा चली जावांगे. दैट पर्सन इज बाय गॉड. एस्केटिक कहाँ लिखा है? अच्छा जी, जो बड़ी सिंपल सी लाइफ जीता है, ऑस्टर लाइफ, उसको कहते हैं एस्केटिक. सेकंड और थर्ड रिपीट करना सोनिया. ऑल्ट्रिस्ट, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो भगवान को प्यार करते हैं. अमेचर, जो मतलब कोई भी काम प्रोफेशनली नहीं करते. दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, दे आर अमेचर्स. In the word many time of people, someone is agnostic and someone is optimistic. Yeah, in this word there are many people. Those, some of them are agnostic and other are optimistic. Okay, is it clear to everyone? Someone is भी आ सकता है, someone is ही आता है. आप एक ही बंदे की बात कर रहे हो. बोहेमेन, बोहेमेन. एनार्किस्ट, वो ऐसा बंदा जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, खराब कर देता है. एनार्किस्ट. Clear? Any doubts? Still? Once please, I am having 67 students right now online and I want the answer from everyone. Yes or no? Should I go ahead or not? Yes or no? Third, amateur. One who does a thing for pleasure and not for a profession. मतलब जो अपनी शौक के लिए काम करता है, उसको कमाना नहीं है उसमें. सरप्लस मीन्स होता है बहुत लार्ज अमाउंट में. Clear? Let me shift to the next one. Okay. अब आपको पता चलने है स्पेलिंग. कैकोग्राफिस्ट, कैकोग्राफिस्ट, one who is bad in spellings.
कईयों को स्पेलिंग्स नहीं ना याद रहते, उसको हम क्या कहते हैं? केकोग्राफिस्ट। The person who is not good in spellings is known as केकोग्राफिस्ट। बोलो, केकोग्राफिस्ट। कैनिबल, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, वो इंसान जो ह्यूमन का फ्लैश खाता है उसको क्या कहते हैं? कैनिबल। कार्निवोरस, वन हु फीड्स ऑन फ्लैश, जो मांस पे जिंदा रहता है, वही खा के उसकी मतलब जैसे होते हैं ना कार्निवोरस एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स दोज हु ईट मीट्स आर कॉल्ड एज कार्निवोरस। ठीक है, वन हु फीड्स ऑन फ्लैश। चॉविनिस्ट, अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, मतलब ऐसा बंदा जिसको एक आइडिया पे ऊपर अंधेवाह विश्वास है, उसको हम क्या कहते हैं? चॉविनिस्ट। रिवाइज दीज 4 सेंटेंस वर्ड्स, प्लीज गो थ्रू इट वंस। इट्स चॉविनिस्ट, केकोग्राफिस्ट, कैनिबल्स, कार्निवोरस। Because to differentiate it is very important. Rather you have read it, but you are not able to recognize it, then there is no use of that. So please do it. Okay. Chauvinist, a person who is blindly devoted to an idea, मतलब किसी ने कुछ बोल दिया या किसी का कोई आइडिया या किसी कोई सोशल रिफॉर्म का कोई आइडिया और वो ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहा है ना, तो उस चीज को हम कहते हैं चॉविनिस्ट। Yes, he believes his a friend like a chauvinist. He follow his friend like a chauvinist. जैसे लोग हैं, इंडियन पीपल है, दे डोंट सी टू द थिंग्स, दे जस्ट फॉलो दैट, दे आर चॉविनिस्ट। कार्निवोरस वो होते हैं जो मीट और फ्लैश खाते हैं। हर्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाते हैं। Connoisseur, a critical judge of any art and craft. He is connoisseur. Connoisseur क्या होता है? A critical judge of any art and craft is connoisseur. Contemporaries क्या होता है? Persons living at the same time. कंटेम्पररीज, वैसे हम कंटेम्पररी वर्ल्ड जो बोलते हैं वो हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो क्या होता है मतलब पास्ट के साथ रिलेट करता होता है। बट कंटेम्पररीज क्या होते हैं? मतलब जो साथ साथ रहते होते थे। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम आर कॉल्ड कंटेम्पररीज। ओके, डांस की फॉर्म भी होती है कंटेम्पररी, उसमें क्या होता है? Okay, it's convalescent, one who is recovering health after illness. जैसे कोई बीमार हो गया उसके बाद वो रिकवर कर रहा है, हम तो यही बोलते हैं he is recovering from health, but you can also called as convalescent. Convalescent, my friend is convalescent, that means recovering from health. Conquete, a girl or a woman who flirts with men. ऐसी लड़की जो लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है उसको क्या कहते हैं? कॉन्क्वीट। क्या कहते हैं? कॉन्क्वीट। कॉस्मोपॉलिटियन, कॉस्मोपॉलिटियन, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज ओन कंट्री। कॉस्मोपॉलिटियन मतलब वो कहता है कि सारी दुनिया मेरी है ना, दैट पर्सन इज नोन एज कॉस्मोपॉलिटियन।
Politician. आ रहा है समझ? Are you finding that you will be using these words whenever it will be required? कैसे याद करते हो इसको मुझे बताओ? How you people are learning these vocabulary words? और कैसे लर्न कर रहे हो? थोड़ा तो टाइम स्पेंड करते होंगे ना इन पे भी, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप लोग ना कर रहे हो। बेटा जी जो वर्ड्स मैं करा रही हूँ इनको अपनी कॉपी पे जॉट डाउन करो, इन वर्ड्स को पढ़ना शुरू करो, देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू डू इट। नॉमिनल मेथड, नॉमिनल मेथड कोई नहीं है। जैसे आपने कोई वर्ड लिखना है, जैसे मैं आपने कोई भी वर्ड लिखना था और आपको उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए था, तो फिर आपको यहाँ से चूज करने पड़ेंगे। No doubt, I feel like it's very difficult, but yes, if we do start doing it, we improve our vocabulary too. मैंने लर्न ही नहीं किए। मैंने लर्न नहीं किए। Yeah, it's not like that I'm cramming every dictionary. It can't be possible. But yes, whenever I need a particular word or I come across a new word, I just search it and try to use it. I am using it practically because I just need it for communication purpose. But you need it for the examination. Sure, you have to work hard. You people have to learn. आ रही है समझ? हम कहाँ पे थे? कॉन्क्वीट, कॉस्मोपॉलिटियन भी कर दिया था। हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, साइनोशोर्स, वन हु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आपके भी वहां पे कोई भी चीज, बेटा अगर आप एक से दो बार, दो से चार बार उसको यूज कर लेते हो, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो सोनिया, आप सबको याद रहेंगे। साइनोशोर क्या होता है? जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। हमारे जलंधर में तो एक प्लेवे स्कूल भी है। हु पीपल आर फ्रॉम द जलंधर? Yes, how many people are there from the Jalandhar? तो हमें तो पता है साइनोशोर क्या होता है या नहीं पता? साइनोशोर क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटियन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, जिसको ये नहीं होता कि मैं ठीक आ ते ठीक आ। वो अगर पानी का नल चल रहा है वो बंद करता है, वो कहता है कि नहीं दुनिया में पानी कम हो रहा है। ठीक है, जिसको सारी दुनिया ही अपनी लगती है उसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। कर लो, कैसे भी याद कर लो, बट इट शुड बी लर्न, द थिंग्स शुड बी लर्न। साइनोशोर हु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आपको तो पता चली क्या कोई ऐसी चीज जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। जैसे आपके घर में कोई लोग, एक इंसान ऐसा होता है जो सबकी अटेंशन सीख करके रखता है। सिटी में एक जगह ऐसी होती है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है ना? दैट थिंग इज नोन एज साइनोशोर। अब हमारे यहाँ पे एक प्लेवे स्कूल है, उसका नाम साइनोशोर रखा है, तो इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं कम एंड टेक एडमिशन ओवर हियर, दिस इज साइनोशोर स्कूल, दिस इज हार्ट ऑफ द सिटी, दिस इज द सेंटर ऑफ द सिटी। Cynic, one who sneers at the belief of others. क्या करता है?
मतलब वो किसी की बातों में आके ना, जैसे उसके वन हु स्निर्स, स्निर्स का मतलब क्या होता है? चेक इट, स्निर्स, SNEE। हाँ जी, वेरी गुड। खामरा चर्चिस, साइनोशॉर इन पंजाब। cynic, one who sneers at the belief of others। मतलब जो किसी की इन्वेस्टिगेशन पे बिलीव कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिनिक। जैसे आप वो कह दे कि कोरोना वायरस इसलिए हो रहा है और आप लोग उस पर बिलीव करना शुरू कर दो, दैट मीन्स यू हैव नॉट इन्वेस्टिगेटेड, यू आर अ सिनिक। डेबोनियर, डेबोनियर, पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन। सिनिक, हाँ सही है, पीछे लगना, जो पीछे लग जाता है, सिनिक। डेबोनियर, सॉय, पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन। द पर्सन जो बहुत ज्यादा मतलब तराशिया हुआ है, एक्सपीरियंस्ड बंदा है, बट फिर भी वो क्या है, बहुत लाइट हार्टेड है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेबोनियर। डेमागोज, a leader who sways his followers by his oratory। अब you need to sign the word sways। डेबोनियर हमने कर लिया। कौन है? पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन। डेमोगेज, अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी। मतलब जो बोलने के साथ साथ अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको, उनके दिल को जीत लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, इट्स ही इज अ डेमोगेज। डेमोगोज, then it is word dil dilettante means a dabbler not serious in art, science and literature। Dilettante, dilettant, dilettant is a dabbler not serious in art, science and literature। That person is known as dilettant, जिसको कुछ नहीं आता, ना वो आर्ट्स में अच्छा है, ना वो साइंस में अच्छा है, ना वो लिटरेचर में अच्छा है। दैट पर्सन इज नोन एज डिलेटेंट। नाउ इट्स effeminate, a man who is womanship in his habits। a man who is womanship in his habits, इसका मतलब क्या है? जिसके अंदर एक ऐसा इंसान जिसमें जनानियों वाली आदतें होती हैं। Make sentence of this word, that is delineate। बनाओ सेंटेंस ऑफ द वर्ड delineate। A person who is not serious in art, science and literature। Effeminate, a person who is womanship in his habits। Egoistic, a lover, egoist। egoist कौन होते हैं? जिनमें ईगो बहुत होती है। A lover of oneself, of one's achievement। ईगो क्या आती है? मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो बंदा क्या होता है? वो बंदा ईगोइस्टिक होता है, ईगो से भरा होता है। सो ही इज ईगोइस्ट।
effeminate, a person who is womanship. Egotist, a one who often talks of his achievement. मतलब जो अपने ही बारे में बातें करता जा रहा है, अपनी अचीव, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उस बंदे को क्या कहते हैं? इगोटिस्ट. इगोटिस्ट बोलो, इगोटिस्ट. egoistic, egotist. Emigrant, a person who leaves his country to settle in another country. They are immigrant. Immigrant मतलब वो immigrant होते हैं जो चले जाते हैं. Epicure, a one who is for pleasure of eating and drinking. Epicure is one who is for the pleasure of eating and drinking. Fastidious, one hard to please. Fastidious क्या होता है? Very selective in his brands and he is hard to please anyone. Done? Okay, कर लो right. I am waiting. Do it. We mean इमिग्रेंट का मीनिंग वो होता है, वो लोग जो परमानेंटली सेटल हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, ओवरसीज कंट्रीज में चले जाते हैं. Epicure are foodie persons. Will you be able to retrieve all these words? हाँ जी. इमिग्रेंट जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं सदा के लिए. A person who leaves his country to settle in another country, मतलब अपनी कंट्री को छोड़ के वो अगली कंट्री में जाते हैं. Egotist, वो कौन होते हैं? जो अपने ही बारे में बातें करते जा रहे हैं. ईगो होने की मतलब है ना, अपनी टॉर आकड़. एक होता है बंदा अपनी गल्ला ही करी जाता, मैंने ऐसे किया, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने 4 साल वहां जॉब की थी, मैंने आईएएस का एग्जाम क्लियर किया, फिर मैं इस रैंक पे आ गया. दैट पर्सन इज इग्योटिस्ट. यार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ प्रॉपर वर्ड्स ਹੁੰਦੇ ਆ है ना. शेखी बाज मेरे को नहीं आने. connoisseur, a critical judge of any art and craft. मतलब जैसे किसी ऑयल पेंटिंग करने वाला कोई जज होगा जो उसकी मतलब खूबसूरती को तराश सकता होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? connoisseur, a critical judge of any art and craft. One hard to please, fastidious, like कई लोग बहुत एरोगेंट होते हैं जिनको तुम प्लीज नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते इन एनी वे. दैट पर्सन इज नोन एज फास्टिडियस. अ वन हार्ड टू प्लीज. effeminate, a one who is womanship in. कई लड़के होते हैं जिनमें लड़कियों की अदाएं होती है, उस बंदे को हम क्या कहते हैं? effeminate.
He acts as an effeminate. प्लीज बस. एपिक्योर, जिसको बहुत मजा आता है खाने पीने का. Please stop these commentating words. No, we are not allowed to do that. Don't do it ever, please. Cosmopolitan. मतलब कॉस्मोपॉलिटियन होता है वो ऐसा इंसान जो हर मतलब पूरे वर्ल्ड को अपनी कंट्री की तरह मानता है. Not sure of it. Sonia, I'm not sure of it. हाँ जी. विक्टर, जिसको सारी दुनिया अपनी लगती हो. बिल्कुल अच्छा इंसान, अ गुड पर्सन, है ना. Conquete, a girl or a woman who flirts with the man. मतलब जो लड़कियां लड़कों के साथ फ्लर्ट करती हैं उनको कहते हैं कॉन्क्वीट. इट्स फास्टिडियस. वन हार्ड टू प्लीज, वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट्स. कई लोग होते हैं उनको ये भी पूछ लो ना क्या खाना, वो तब भी बस ऐसे नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं ये भी. दैट पर्सन इज नोन एज फास्टिडियस. बहुत नखरीला है ये. ये कौन सा वर्ड है जी. Demagogue, a leader who sways his followers by his oratory. मतलब जो बंदा अपने शब्दों से सामने वाले का दिल जो है उसको जीत लेता है, दैट पर्सन इज नोन एज डेमागॉग. अच्छा जी. ज्योति, अच्छा ज्योतिका कह रही है माई सिस्टर इज रियली फास्टिडियस. ओके, आई थिंक वी आर क्लियर विद दीज वर्ड्स. और स्टिल यू हैव एनी डाउट्स इन दिस. एपिक्योर, जिस बंदे को खाने पीने का शौक है. अच्छा, ये ऑर्डर करें, ये खाएं, वो बनाएं, ऐसा करें वैसा करें, दैट पर्सन इज एन एपिक्योर. Debonair, soft, polished and light-hearted person. Clemency, mildness, kindness in something. हम ये कहते हैं ना, क्लीमेंची का मतलब क्या होता है. जिसे हम कहते हैं कि this soap is very mild, है ना. Clemency in this soap makes favoritism among the people. कि जो इसमें माइल्डनेस है उसके कारण ये लोगों का फेवरेट है. या काइंडनेस, काइंडनेस इन रीटा is the only thing that attracts people. Clemency in Rita is the only thing that attracts people. अब समझ आ गया वर्ड क्लीमेंची. नाउ प्लीज राइट द सेंटेंस फॉर दिस. क्लीमेंची के लिए सेंटेंस लिखो. राइट डाउन द सेंटेंस. Yes, my students, please start typing the word, the sentence for clemency.
रिपीट कर दो। हाँ मतलब मैं कह रही हूँ जो बंदा बहुत काइंड होता है, बहुत मतलब दिल का बहुत ज्यादा साफ है ना, और कोई चीज होगी तो बहुत ज्यादा माइल्ड होती है कि वो आपको इफेक्ट नहीं करती है ना। लेनी देन इट इज लेनियंसी, लीनियंसी। जैसे अब क्लीमेंची, माय टीचर हैज क्लीमेंची इन हिज चेकिंग। देन इट का मतलब क्या है कि वो बंदा जो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, वो चीज जो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, वो चीज जो, वो इंसान जो बहुत प्यारा है, बहुत काइंड है, उसे मैं क्या कहती हूँ? क्लीमेंची। अब तो हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए। The police should not follow Clemency against the thief. Guri is very Clemency in his behavior. Guri is very नहीं आएगा, Guri is extremely Clemency. Clemency नहीं, Guri is having Clemency in his behavior. Kindness in his behavior is fine. He is Clemency person because he has love for both people. Richa ma'am is very Clemency. Richa ma'am is very leniency. Richa ma'am has clemency in his behavior. Then it can be like, it can be the correct one. Do you think that IAS officer should have clemency in his nature? I don't think so. I think that that person needs to be very strict. One teacher, our teachers are clemency in his in behavior with all the. Our teachers are having clemency in their behavior with all the students. Nature is the reason that he is not getting promotion होता है, प्रमोशन नहीं होता, promotion. PROMOTION, promotion. Chaste, she is known for her chaste character. She is known for her pure character. चलो ठीक है जी, क्लीमेंची छोड़ दो अब. Come to the word chaste. Parents should behave with clemency while dealing with the student. Parents should behave with kindness. ठीक है. Okay, chaste. It's pure, virtuous. She is known for her chaste character. She is known for her chaste character. ठीक है. Cogent, convincing, forceful. He could not offer any cogent reasons for his absence. He could not offer any cogent reasons for his absence. He could not offer any forceful reason for his. My mother has clemency in her behavior. She is chaste-hearted girl. She is pure-hearted girl. He could not offer any cogent reasons for his absence. He could not offer any forceful reasons for his absence. It is chaste milk. It is pure milk. Fine. Okay, now it's cogent, convincing, forceful. जिदा कई लोगों को आदत होती, मतलब it's by pressure to do these things. Diamond is very chaste. Very nice, Veena. Diamond is really pure.
Okay, let's move to the next word, that is cogent. What is the meaning of the word cogent? It means convincing or forceful. He could not offer any cogent reasons for his absence. वो कोई भी फोर्सफुल रीजन नहीं बता सकती अपनी एब्सेंस के लिए. Compatible. They always have compatible relations because there was deep understanding between them. They always had compatible relations. मतलब suitable relations because there was deep understanding between them. Collusion. आ जाओ please. Try to make sentences after my class. Please do the slide with me. Can we or not? Collusion means conspiracy, nexus. Conspiracy का मतलब क्या होता है? When एक बंदा दूसरे बंदे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्स्पिरेसी होती है. The local MP was found in collusion with the smugglers operating in the town. मतलब वो उसके साथ क्या था? Not positive. उनके साथ क्या चल रहा था? उनका क्रॉस एक्शन. Contingency. My father always maintained contingency found to meet with unforeseen experiences. Expenses. इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं. अगर हम क्या करेंगे कि मतलब खर्चे ऐसे डालेंगे जो कि मतलब नहीं होने चाहिए, तो उसके फादर क्या है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं. फॉर दैट द वर्ड कैन बी यूज्ड इज कॉन्टिंजेंसी. व्हाट द वर्ड कैन बी यूज्ड इज कॉन्टिंजेंसी. कॉन्स्पिरेसी यही होता है, ऑपोजिट चलना. कॉन्स्पिरेसी का मतलब तो यही होता है. साजिश रचना, उल्टा चलना. Contingency is the word which can be used in regards to emergency. इमरजेंसी के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो कॉन्टिंजेंसी. Condone means overlook या forget. His fault is too serious to be condoned. मतलब बहुत है ना. कंडोन का मतलब क्या होता है? हम माफ कर देना, है ना. तो condone is used for the word forgive. When you forgive someone, you can use the word over there is condone. Consensus, general agreement. A good government can be run efficiently by consensus among all the parties. एक एग्रीमेंट हो, जनरल एग्रीमेंट, तो हम एक अच्छी गवर्नमेंट बहुत एफिशिएंटली रन कर सकते हैं. सो द वर्ड यूज फॉर दिस इज कंसेंसस. A good government can be run efficiently by consensus among all the parties.
हाँ ये ठीक है. आई एम गोइंग टू द चर्च इमरजेंसी. फैलना मीन्स होता है स्प्रेड होना. इतने समझ आ गए हमें वर्ड कंसेंसस तक. आर वी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज वर्ड्स? कहाँ पे अरबिन मीनिंग नहीं लिखे हुए? आई हैव रिटन द मीनिंग्स. हिंदी में मुझे इतनी हिंदी टिपिकल नहीं आती, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन द लैंग्वेज. आपसे लिख नहीं हुए. क्या मैं स्लाइड पीछे आगे करूं? डू यू वांट टू क्लिक? Consensus means general agreement. A government can be run efficiently by consensus among all the. मतलब एक एग्रीमेंट कर लो, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपने इसको फॉलो करना है, और ये रूल्स एंड, अगर किसी ने चोरी की है तो पनिशमेंट ये है, अगर नहीं की है तो ये है. जब हम ऑफलाइन हो जाते हैं, क्या आपको ये पीपीटी दिखती नहीं है? When the class is over, we have uploaded a PPT. You are not able to see that. Okay, I felt like you are able to watch this also. Okay, fine, no problem. Seventh repeat karo. Chaste, very pure, very, you can say, virtuous. That means she is known for her chaste behavior. Okay, click this. Everyone, please click this. Click the photograph. Everyone, please do it. Nice. Should I shift to the next? Click. जिन्होंने ऑलरेडी क्लिक करी है, वेरी नाइस. जिन्होंने नहीं करी है वो क्लिक कर लो. Yes, president has the power to put emergency. To put नहीं होता, to declare emergency होता है. emergency के लिए वर्ड था contingency. Okay, what is the meaning of the word corroborate? It means confirm. I am speaking the truth and my father is sure to corroborate my statement. मतलब मैं सच बोल रहा हूं और मेरे फादर साहब ने क्या करना है, ये कंफर्म कराना है कि क्या मैं सच बोल रहा हूं या नहीं. Crestfallen, dejected on account of heavy loss in the business. He is crestfallen these days. He is dejected. He is rejected. उसको निकाल दिया है. Conclave, private meeting.
both the enemies agreed to hold a conclave without the presence of a third party. Both the enemies agreed to hold a conclave without the presence of a third party. मतलब प्राइवेट मीटिंग हैंडल करना. Constitute, interpret. It is difficult to constitute the working of the laws of nature. मतलब बहुत डिफिकल्ट है कि आप इंटरप्रेट करो कि लॉ जो है या कुदरत जो है वो कैसे चलती है. क्लियर? विल यू लर्न ऑल दीज मीनिंग्स? विल यू गो थ्रू दीज मीनिंग्स? Okay, nice. Please do it. This will be your homework because if I go ahead, it will be difficult for you. Okay जी, मैं पंजाबी च भी बोलिया करांगी. I will try to do. 18th. 18th is not clear. We will do it tomorrow. Don't worry. This is not included in this slide. Constitute is interpret. मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ. ओके जी. हाँ बिल्कुल ठीक है ज्योतिका. सेंटेंस क्लैपिंग. यू आर डूइंग प्रिटी वेल. When anyone will do this like this and teacher will also do like this. Don't worry. Okay, fine. For today itself, please go through these. Tomorrow we will do something else. Bye bye. Take care. Good evening. Good night. Bye.